Hello everybody, welcome back to my channel IAS Commando. So in this video we are going to discuss some important concept of economics related to bonds. Okay, now let me tell you about myself. Okay, I run this channel IAS Commando because I have cleared 5 prelims examination, cleared 3 prelims and I have given 3 interviews. Okay, so that is my qualification of guiding and teaching you for UPSC. Okay, so if you like this video, please press the like button, share it to your friends, okay, so that knowledge can reach many corners. Let's begin with the concept of bonds now. Okay, fine. Now, students, now let us understand the concept of bonds. So, whenever any entity has to work, it needs capital. Okay. Now, this capital may be very large so that no one can bootstrap it by themselves. Okay. And they need money from different investors from different institutions. So, bond is one such instrument where any entity undertakes debt to run its business. Okay, so now this debt instrument, which is basically a bond, it can either be issued by government or it can be issued by corporate. Okay, so any investor can give loan to entities such as government or corporate through this bonds. All right, through this bonds. Fine. Now, what is the important thing about this bond is that you buy a bond for a definite period of time because there is a maturity for every bond. Okay, what do I mean by maturity for every bond? That after a certain period of time, the money that you have given to the corporate, it has to return you that money, and there may be some other liabilities as well. That is, it has to pay you some interest, and that interest can either be fixed or variable. So basically this is about the bond. Now see, whenever there is any investor, okay, whenever there is any investor and he is loaning his money to any entity, whether it be a government or corporate, so that owner of bond is known as debt holder or creditor. Okay, that holder of bond is either known as debt holder or creditor. So these are the basic things about bond. If I say it very clearly, तो bond basically क्या है कि आपने किसी से पैसे लेने का एक तरीका है, दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट. तो कोई भी इन्वेस्टर होगा आपको लोन देना चाहेगा इफ यू आर एनी एंटिटी, वेदर आप गवर्नमेंट हैं या कॉर्पोरेट हैं. ओके, तो एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आपको एक डेफिनेट अमाउंट चाहिए तो आप बॉन्ड्स के थ्रू उसको रेज कर सकते हैं. बट as a single person you can't raise that. Either you will be government or you will be corporate with some credibility, कि आपकी ये क्रेडिबिलिटी रहे कि जो इन्वेस्टर है उसको ये यकीन हो कि ही इज लोनिंग हिज मनी फॉर सच अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आप में इतनी क्रेडिबिलिटी है कि आप उसको रिटर्न कर पाएंगे. ओके, सो बॉन्ड्स का क्या है कि डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही बॉन्ड इशू होते हैं, उसके बाद बॉन्ड्स मैच्योर हो जाते हैं. तो जो भी इन्वेस्टर होता है वो अपना बॉन्ड रिडीम कर लेता है या अपने पैसे वापस ले लेता है. सो उस बॉन्ड के साथ आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट फिक्स्ड हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, प्लस आपने जो अमाउंट लोन किया हुआ है वो तो आपको वापस मिलेगा ही. ओके, और अगर आप किसी बॉन्ड के ओनर हैं तो आप डेप्ट होल्डर या क्रेडिटर कहलाते हैं. सो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लर्न मोर थिंग्स अबाउट बॉन्ड्स. तो बॉन्ड्स देखिए, गवर्नमेंट जब बॉन्ड इशू करते हैं तो उसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं. ओके, गवर्नमेंट जब बॉन्ड इशू करती है तो उसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं. अब देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या जीसेक जो होते हैं, इस ये बेसिकली ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं. अब ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है? दे कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन मार्केट. अब कौन सा मार्केट? हर तरीके के इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग मार्केट होता है. जैसे आप शेयर्स बाय या सेल करते हैं तो आपके लिए वो होता है स्टॉक मार्केट. ऑलराइट, तो बॉन्ड्स का भी ऐसा ही मार्केट होता है. तो बॉन्ड्स आर ऑल्सो बेसिकली ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स. नाउ देखिए, बॉन्ड्स क्या है? ये गवर्नमेंट की डेप्ट ऑब्लिगेशन को एक्नॉलेज करता है. ओके, सो बेसिकली अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड इशू किया हुआ है, जीसेक हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ही बुलाते हैं, तो अगर बेसिकली किसी गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड इशू किया हुआ है तो उस गवर्नमेंट ने डेप्ट उठाई हुई है, यानी कि गवर्नमेंट ने मार्केट से पैसा उठाया हुआ है.
तो इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन है कि ये डेप्ट को वो बाद में भरे या फुलफिल करे। तो बेसिकली यही बात को इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा कि जीसैक एक्नॉलेजेस गवर्नमेंट डेप्ट ऑब्लिगेशन। ओके, अब देखिए जीसैक भी या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक तो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, तो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है उन्हें हम ट्रेजरी बिल कहते हैं। तो बेसिकली जो ट्रेजरी बिल होते हैं इनकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो 1 ईयर से लेस होती है। ओके, तो ऐसे कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिनकी मैच्योरिटी का जो पीरियड है वो 1 साल से कम का है उसे हम शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपके बॉन्ड्स आते हैं एंड डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं। जो लॉन्ग टर्म जीसेक होते हैं उनकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है यूजुअली 1 ईयर से ज्यादा होती है। एंड देखिए लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठा रही है। सो इट विल यूज दैट मनी फॉर इन्वेस्टिंग। बट देखिए शॉर्ट टर्म जो ट्रेजरी बिल होते हैं तो गवर्नमेंट के कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए भी उठाए जा सकते हैं। अब देखिए जीसेक के बारे में एक बात समझिए कि जीसेक अगर आप ले रहे हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। रिस्क क्या, आपने कभी भी किसी को लोन दिया सो देयर इज ऑलवेज अ डाउट दैट वेदर दैट पर्सन or that entity or that startup will be able to give back your investment or not. Okay, will be able to return the money or not. But if any government is giving you any government is taking money from you, okay, through these bonds, you can be assured of that there is very less risk involved. Why? Because usually government are stable and they will not fail to return your money. Okay, so इसीलिए इसे रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। रिस्क फ्री इज योर कीवर्ड व्हेन यू आर स्टडिंग जीसेक। ओके, रिस्क फ्री इज योर कीवर्ड व्हेन यू आर स्टडिंग जीसेक। फाइन, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। ना देखिए गिल्ट एज सिक्योरिटीज इनको क्यों कहा जा रहा है। गिल्ट एज सिक्योरिटीज का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि ये हाई ग्रेड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं और बहुत ही मिनिमल चांसेस हैं कि इनका डिफॉल्ट हो जाए। ओके, हाई ग्रेड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड बहुत ही मिनिमल चांसेस है कि इनका डिफॉल्ट हो जाए, तो इसलिए इन्हें गिल्ट एज सिक्योरिटीज कहा जाता है। फाइन, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब देखिए ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं ये दोनों ही गवर्नमेंट इशू कर सकते हैं। It can also be issued by central government, it can also be issued by state government. अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती हैं तो वो ट्रेजरी बिल भी इशू कर सकती हैं। ओके, दे कैन इशू बॉन्ड्स एंड दे कैन इशू डेटेड सिक्योरिटीज। तो ये 3 टाइप की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है। बेसिकली कौन कौन सी? ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज। लेकिन अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड्स को ही इशू कर सकते हैं। ऑलराइट, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड्स को ही इशू कर सकते हैं। फिर देखिए ट्रेजरी बिल के बारे में और डिटेल में अगर बात करी जाए। ओके, ट्रेजरी बिल के बारे में अगर हम और डिटेल में बात करते हैं तो ट्रेजरी बिल के बेसिकली 3 टेनोर्स होते हैं। तो ट्रेजरी बिल जो है वो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, हम पहले भी इस बात को देख चुके हैं। ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। तो जो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती हैं उनकी जो मैच्योरिटी पीरियड रहती है आपको पता है वो 1 ईयर से कम की होगी। ओके, तो 1 ईयर से कम के में भी 3 टाइप की मैच्योरिटीज हैं। एक 91 डेज के लिए इशू करी जाती है, एक 182 डेज के लिए और एक 364 डेज के लिए। अब देखिए ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन सिक्योरिटी कहा जाता है। अब जीरो कूपन सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया जा रहा आपको। ओके, ऐसा कोई इससे कूपन नहीं अटैच है कि ये आपका इंटरेस्ट है तो आप ये कूपन जा करके देंगे तो उसको दिखाने से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ओके, तो इसलिए इनको जीरो कूपन सिक्योरिटी कहा जा रहा है क्योंकि ये कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए 100 रुपए का बॉन्ड है तो इसको 98 रुपीज में आपको इशू कर दिया जाएगा।
कोई बॉन्ड है जो कि 100 रुपए का है, उस पे लिखा हुआ है कि दिस बॉन्ड कॉस्ट 100 रुपीज, तो ये 100 रुपीज क्या हो गई, उसकी फेस वैल्यू हो गई। अब आपको ये दे दिया जाएगा 98 या 97 रुपीज में, लेट से, तो आपको क्या है कि जब आप इसकी मेच्योरिटी पीरियड हो जाएगी, आप इसको रिडीम करने जाएंगे, तो ये आपको 100 रुपीज में ही मतलब आपसे लेंगे। सो यू आर बाइंग दिस बॉन्ड इन 98 और 97 रुपीज, दैट इज इट इज अ डिस्काउंटेड प्राइस, and then you are selling or redeeming it at face value. Okay, then you are selling or redeeming this bond at its face value. So this is basically the thing with this short term ट्रेजरी बिल। ओके, ट्रेजरी बिल के बारे में अगर हम फिर से बात करें तो क्या है कि ट्रेजरी बिल क्या है, एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है जिससे गवर्नमेंट मनी रेज कर रही है। तो इसके 3 टेनर्स हमको देखने को मिलते हैं, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। एंड एक ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज भी कहलाई जाती हैं, क्योंकि ये कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करती, इनको डिस्काउंट पे इशू कर दिया जाता है और इनको फेस वैल्यू पे रिडीम कर दिया जाता है। ऑल राइट, ओके फाइन, सो दिस इज अबाउट दिस। नाउ लेट अस सी वन मोर टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एक और टाइप की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जिसे कि कैश मैनेजमेंट बिल कहते हैं। अब ये कैश मैनेजमेंट बिल क्या है, तो 2010 में आरबीआई प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट निकाला, इसको उन्होंने कैश मैनेजमेंट बिल का नाम दिया। अब पर्पस क्या है कैश मैनेजमेंट बिल का, तो इट इज issued to meet the temporary mismatches in the cash flow of government of India. GOI means government of India. तो जब भी ऐसा होता है कि कुछ कैश फ्लो में मिसमैच है, पैसे कम पड़ रहे हैं, so that needs to be borrowed from somewhere for a very short period of time. Okay, तो उसको हम कैश मैनेजमेंट बिल कहते हैं। अब कैश मैनेजमेंट बिल मतलब जो भी हमने कंडीशंस पढ़ी ट्रेजरी बिल में वो सारी इंक्लूडेड है इसमें। बट द थिंग इज कि हमने देखा था ट्रेजरी बिल के 3 मैच्योरिटी पीरियड्स हैं, एक 91 डेज के लिए इशू होते हैं, एक टाइप के ट्रेजरी बिल 182 डेज के लिए इशू होते हैं और एक टाइप के ट्रेजरी बिल 364 डेज के लिए इशू होते हैं। ये वाले जो कैश मैनेजमेंट बिल्स हैं इनकी मैच्योरिटी इज लेस देन 91 डेज। ओके, इनकी मैच्योरिटी इज लेस देन 91 डेज। तो ये है कैश मैनेजमेंट बिल के बारे में। ऑल राइट, अब देखिए हम लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखते हैं। लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है उनमें एक है डेटेड जीसेक्स। ओके, जीसेक्स। अब देखिए डेटेड जीसेक मतलब कि डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, अब देखिए जो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो भी आपको 2 टाइप के मिलेंगे, एक पे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगा, एक पे फ्लोटिंग रेट मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, कोई भी बॉन्ड है उसमें ये कूपन्स रहते हैं, आप रेगुलर इंटरवल पे ये कूपन दे करके अपना इंटरेस्ट आप रिडीम कर सकते हैं। ओके, आप अपना इंटरेस्ट ले सकते हैं जो भी इंटरेस्ट उसमें प्रॉमिस किया गया है। तो कई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऐसी होती है कि कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस कर दें, कई फ्लोटिंग रेट करती हैं। सो जब हम फ्लोटिंग रेट के बारे में और देखेंगे आने वाले वीडियोस में, सो दिस इज बेसिकली आप क्या कहेंगे कि प्रिंसिपल का आप अमाउंट देंगे, जो भी उसमें लिखा हुआ है फेस वैल्यू का वही अमाउंट देंगे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने के लिए। ओके, आपको हाफ ईयरली बेसिस पे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा, हाफ ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा एंड ये इंटरेस्ट रेट आपको ये कूपन से मिलेगा। ओके, अब देखिए जो डेटेड सिक्योरिटीज होती है इनकी रेंज 5 ईयर्स से 40 ईयर्स के बीच में हो सकती है, बिकॉज लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है तो गवर्नमेंट चाहेगी कि काफी लॉन्ग पीरियड रहे जिसमें ये आपसे इस पे मनी बोरो कर रही है। ओके, अब बेसिकली ये जो डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं तो आरबीआई में ही एक डिवीजन है जिसे कहते हैं पब्लिक डेट ऑफिस। तो पब्लिक डेट ऑफिस जो है वो बेसिकली रजिस्ट्री या डिपॉजिटरी के जैसे काम करती है जीसेक की, यानी कि यही इशू करेगी, यही इंटरेस्ट पेमेंट करवाएगी और यही रीपेमेंट करेगी मैच्योरिटी पे। ओके, सो ये डेटेड सिक्योरिटीज के बारे में। डेटेड जीसेक्स क्या है, दीज आर बेसिकली लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट। हमारे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट
ट्रेजरी बिल थे हमारे लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट डेटेड G-Secs हैं. ओके, so this is about this. So if you like this video, please subscribe to my channel and I will bring more such videos on economics concept. So thank you so much for discussion. All the best for prelims.